Bismillahirrahmanirrahim. Already we have assigned a task to see the video already uploaded on your LMS and also shared with you the links by the WhatsApp group. So for the long-term usage, you can use these links with the sequence, the chapter number 7, leasing ijara, topic number 7 here. So SQ3R related method and reading method and Ijara chapter survey, and also the advanced level of Ijara wa itna. So we will continue from the point of the topic we discussed in that section. Already we discussed that some students provided information what they have learned from these videos. So we can continue this. So actually this recording will be the sequential sequence number 3 of these already provided 2 recordings. So in multiple classes, recordings of multiple uh, recordings will be beneficial for you, all of you, because I am teaching multiple sections of the same course. So I don't want to repeat again and again, but I want to add some value, some information, something, inshallah. So these 2 links already provide available on your uh, LMS and other classes LMS, other same courses LMS. So here the separate chapter also available on your LMS. So we will continue. You can inform that till where we have completed in the second video. So we will continue from that side. Maybe there will be a quiz on this chapter. So you have to be attentive, inshallah. Not urgently, maybe after midterm or maybe something, but relevant to the chapter, inshallah. So you have to be attentive and okay. Somehow difficulty to joining. Again, we can use directly as already in recording. Uh, if anyone want to get this book online free of cost, MBL Guide to Islamic Finance, but we already have this link. We can use, but you will type on MBL Guide to Islamic Finance, you will reach by the browser, Google Chrome or any other browser, this book. And in this book, you can see that what is the chapter number. Chapter number is, I think, 15, 15 or 16. 16 is the chapter of Ijara. Ijara mean there are 2 meanings already recorded, that Ijara used in 2 meanings, 2 different meanings. Number one is to employ someone. सही है, हम उर्दू में भी कहते हैं उजरत पे किसी को रखना. जब आप उजरत पे किसी को रखते हैं, तो यानी किसी को मुलाजिम रखते हैं तो उसको उजरत देते हैं. तो फर्स्ट मीनिंग ऑफ इजारा इज उजरत. और इस टाइप को हम कहते हैं इजारतुल अशखास. और सेकंड मीनिंग इज, जो कि हमारा फोकस है, वो है किराए पर देना कोई एसेट, कोई चीज. तो हम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में समहाउ उसको डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन हम फोकस करते हैं दोबारा. इसके पेज नंबर 179 यहाँ पर लिखा हुआ है. तो हम देखते हैं पीडीएफ में ये कौन सा पेज है. पीडीएफ में 179 की जगह 180 आ गया, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें. जी, किसी को कुछ याद है कि क्या रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या डिस्कशन इस पे हुई है, तो बता सकें. ऑलरेडी इसको हमने स्टार्ट कर लिया था सेकंड रिकॉर्डिंग के अंदर. सर जी जी. तो पहले स्कैन कराना था आपने पूरा। सर हाँ. इजारा का मतलब ये है कि आप
कोई ऐसा बंदा अपना एसेट की ओनरशिप किसी और बंदे को दे रेंट पे। आवाज थोड़ी सी हल्की आ रही है, लग रहा है खाना नहीं खाया दोपहर का। सर मैं कह रहा हूँ कि अब आ इजारा रही। का मतलब है कि अगर आप एक चीज एसेट ओन कर रहे हो तो आप उसकी जो ओनरशिप वो किसी और को दो फॉर टाइम बीइंग ऑन रेंट। अरे 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 अरे, ऐसी 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 बातें करेंगे तो फिर क्या होगा। सर आई आवाज? हाँ आवाज तो आ रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जो बात की थी कि इसके दो मीनिंग्स हैं इजारा के। एक इजारतुल अशखास कहलाता है, जो अभी मैंने सिलेक्ट किया है। ये मीनिंग हमें बता रहा है कि हम किसी को उजरत पे रखते हैं, तो ये इजारतुल अशखास कहलाता है। शख्स हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, शख्स कहते हैं किसी फर्द को, किसी इंसान को। तो उजरत पर किसी शख्स को अपने पास मुलाजिम रखना इजारतुल अशखास कहलाता है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इजारा वी कैन स्टडी बाय द टेक्स्ट। जस्ट इतना ही टेक्स्ट इसके हवाले से, इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट की बुक नहीं है, बल्कि इस्लामिक फाइनेंस की है। इस्लामिक फाइनेंस का नॉर्मली ताल्लुक एसेट्स से होता है। तो एसेट्स से जो ताल्लुक रखने वाला इजारा है वो कहलाता है इजारतुल आयान। उसकी तफसील हमारे पास यहाँ से ऑनवर्ड पूरी बुक, पूरे चैप्टर में ये है। अच्छा, इसमें जो है इजारतुल आयान की जो है सेकेंडरी टाइप ऑफ इजारा रिलेट्स टू द यूजर फ्रैक्ट्स। यूजर फ्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? मनफात, फायदा उठाना। सही। तो किसी एसेट को, जो मेरा ख्याल है हमारे एक स्टूडेंट ने बताने की कोशिश की है लेकिन शायद उलट बोल गए हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ यूजर फैक्ट्स, नॉट ऑनरशिप। किसी फर्द को उस चीज के इस्तेमाल का हक देना, इस्तेमाल का राइट देना, ऑनरशिप ना देना। सही है। जैसे मिसाल के, तो बिल्कुल आसान सी एग्जांपल है, आप रेंट पे कोई घर लेते हैं, कोई घर देते हैं किसी को, तो क्या करते हैं? उसके इस्तेमाल करने की हद तक आप उसको कहते हैं भाई तुम इस्तेमाल करो, हमें रेंट देते रहना। लेकिन ऑनरशिप हमेशा लेसोर की रहती है, जो मालिक होता है उसी की ऑनरशिप रहती है। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। यूजर फ्रक्ट्स यानी मनफात, उसके इस्तेमाल करने का हक, वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इसकी तफसीलात आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, फिर सब्जेक्ट मैटर कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, तो रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी इस पे काफी डिटेल में बात हुई है कि सिर्फ कंज्यूमेबल आइटम, ऐसे आइटम जो कंज्यूम करने से ही हमें फायदा दे सकते हैं, यानी जिनको खत्म किए बगैर हम फायदा नहीं उठा सकते, तो वो जो है सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकते इजारा यानी रेंट ट्रांजैक्शन का। मिसाल के तौर पर ग़िज़ा की जितनी चीजें हैं, खाने पीने की, आटा दाल चावल, ये सारी चीजें। इसी तरह फ्यूल्स की जो चीजें हैं, पेट्रोल डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जब तक इनको खत्म ना कर लिया जाए, जब तक इनको यूज ना कर दिया जाए, जब तक इनको हलाक ना कर दिया जाए, जब तक इनका, इनकी असल को खत्म ना किया जाए, जब तक इनसे फायदा नहीं उठा सकते। आप मिसाल के तौर पर चावल की एक बोरी लें और उसको जो है सुबह शाम बैठ के देखें, तो कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको जो है वो पकाएंगे नहीं और खाएंगे नहीं, तो उससे फायदा आप हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह पेट्रोल का जो है वो एक गैलन, एक ड्रम आप लें और उसको जो है वो सुबह शाम जो है वो बैठ के देखते रहें या उसके ड्रम के ऊपर बैठ जाए, कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल उसका फायदा जो है पेट्रोल का क्या है? आप उसको गाड़ी में डालें और उसको जनरेटर में डालें और उससे काम लें। तो जब ओरिजिनल इसका खत्म होगा, जब फायदा देगा। तो ऐसी चीजें कहलाती है कंज्यूमेबल। सही, कंज्यूमेबल यानी जिसको हम कहते हैं अरबी में इस्तेहलाकी अशिया, यानी वो अशिया जो, जिनके ओरिजिनल को खत्म करके ही फायदा हासिल किया जा सकता है। तो ऐसी अशिया किराए पर नहीं दी जा सकती। सही। इसके मुकाबले में दूसरी क्या होती है? वो नॉन कंज्यूमेबल अशिया जिनकी ओरिजिनल को बाकी रखते हुए आप फायदा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर घर है, आप 1 साल रहे, 10 साल रहे, 50 साल रहे, वो घर 100 गज का है तो 100 गज का ही रहेगा, वो 99 गज का या 98 गज का नहीं हो जाएगा आपके रहने से। या इसी तरह जो है वो, अगर गाड़ी है तो वो ओरिजिनली गाड़ी वही रहती है, आमतौर पर उसका साइज कोई छोटा नहीं हो जाता। तो ये जो है ये नॉन कंज्यूमेबल अशिया है, मशीनरी है। हाँ, उसकी डिप्रिसिएशन होती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल उसकी असल बाकी रहती है। तो ये नॉन कंज्यूमेबल अशिया जो है ये इजारा का, किराएदारी का सब्जेक्ट मैटर बन सकते हैं, इस पर मामलात किए जा सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। और यहीं से एक सवाल जो है वो उस रिकॉर्डिंग में भी किया था, अगर आप लोगों ने देखा है तो फौरन जवाब दे देंगे, वरना जो है सोचेंगे कि करेंसी नोट, सही है, पीकेआर हो, डॉलर हो, जब को उसको उसी करेंसी में ही हम डीलिंग कर रहे हो,
तो क्या ये कंज्यूमेबल है या नॉन कंज्यूमेबल है, या दूसरे अल्फाज में क्या इसको किराए किराए पर दे सकते हैं या नहीं? कैश को किराए पर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? सर नहीं दे सकते क्योंकि वो कंज्यूमेबल गुड है। हाँ अच्छा जिब्रान, आपने आधी बात सही लिखी है, आधी बात गलत लिखी है। ये जिन्होंने भी वॉइस में बताया माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा सही बताया है। इसमें देखिए कैश इज नॉन कंज्यूमेबल, यानी कंज्यूमेबल का मतलब ये, हाँ सही है, कैश इज कंज्यूमेबल, यानी जब तक इससे फायदा, इसकी असल को आप खर्च नहीं कर लेंगे, जब तक इससे फायदा नहीं उठा सकते, तो आप इसको किराए पर नहीं दे सकते। ये उसूल याद रखिएगा। कंज्यूमेबल अशिया को जिनकी असल को बाकी रखे बगैर आप उससे फायदा नहीं उठा सकते, असल को बाकी रखना जरूरी है इसमें। सही, जिस चीज को आप किराए पर दे रहे हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में बाकी रहे। सही, जैसे घर और गाड़ी की एग्जांपल है। उस पे फायदा मिलेगा, इफ लोन दे दें उस पे फायदा दे दें। अब देखिए लोन, यही तो ये इसका जो है बेसिकली, आपने रिकॉर्डिंग में अगर देखा होगा तो बेसिकली लोन के ऊपर जो है वो कर्ज के ऊपर इजाफा मना है, रिबा है, सूद है, इंटरेस्ट है, हराम है। सूरह बकरा की आयत नंबर 275 से 289 तक यही बात है कि भाई लोन के ऊपर, कर्ज के ऊपर इजाफा जायज नहीं है। तो वजह वो आर्गुमेंट बाज लोग ये करते हैं कि जिस तरह आप कोई घर किराए पर देते हैं, कोई दुकान किराए पर देते हैं, कोई कारखाना किराए पर देते हैं, तो जब वो किराए पर देना जायज है तो पैसा किराए पे देना जायज क्यों नहीं है? तो जवाब इसका यही है कि पैसा जो है वो कंज्यूमेबल आइटम है, ओरिजिनली आप इससे फायदा नहीं हासिल कर सकते जब तक इसको यूज ना कर लें, इसको खत्म ना कर दें। सही है, आप पैसा खर्च करेंगे तो फिर आप उससे फायदा हासिल कर सकेंगे, तो इसलिए इसको किराए पर नहीं दिया जा सकता। सही है जी, बाकी आप लोगों ने कुछ ना कुछ जवाब इसमें दिए हैं। अच्छा, ऑल कंज्यूमेबल थिंग कैन नॉट बी लीजिंग आउट, ये इसकी तफसीलात आप इसमें पढ़ते रहिएगा। बेसिक पॉइंट जो है वो मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, और अब ये अगेन दो दूसरी रिकॉर्डिंग है इसमें भी बता दिया। ऑल लाइबिलिटीज ऑफ ओनरशिप बॉन्ड बाय द लेसोर, जो ऑनरशिप रेलिवेंट लाइबिलिटीज हैं, मिसाल के तौर पर कोई घर आपने किराए पर दिया है तो प्रॉपर्टी टैक्स वो ऑनरशिप से रेलिवेंट है, तो वो जो है वो लेसोर ने बेयर करना है। हाँ, जो कंजम्पशन से रेलिवेंट है जैसे यूटिलिटी बिल्स हैं, वो जो है वो लेसी बेयर कर सकता है। ये भी डिपेंड करेगा नॉर्म्स पे। नॉर्म्स क्या है, उर्फ क्या है, तामुल नास क्या है, लोग किस तरह मामलात करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आप जब होटल में जाते हैं, होटल में रूम बुक करते हैं, किसी दूसरे सिटी में जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में आप जाएंगे, या XYZ किसी बिजनेस ट्रिप पे जाएंगे, तो वहां पर आप जब रूम बुक करते हैं तो कंज्यूम वाले आइटम भी, मिसाल के तौर पर शैम्पू है, साबुन है, ये सारी चीजें भी होटल वाले प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये तामुल नास या नॉर्म्स पर डिपेंड कर रहा होता है कि होटल इंडस्ट्री के नॉर्म्स में ये बात शामिल है कि कमरा किराए पर देने के साथ साथ इस तरह की चीजें भी उसका पार्ट होती हैं। तो ये भी यानी चीजें हो सकती हैं। अच्छा जी, पीरियड ऑफ लीज, नाम से जाहिर है द पीरियड ऑफ लीज मस्ट बी डिटरमाइंड इन क्लियर टर्म। जब मुआयदा हो रहा है किराएदारी का, तो उस वक्त ही तय हो जाए कि भाई कितना अरसा जो है वो किराए पर रहा जाएगा, कितना अरसा किराए पर रहा जाएगा। अच्छा, ये बुक ऑलरेडी, ये चैप्टर ऑलरेडी आपके LMS पे अवेलेबल है, ये उसी बुक में से है, लेकिन क्योंकि उस बुक में 300 सफ़ात हैं, तो मैंने कहा डर ना लग जाए आप लोगों को, तो डर से बचाने के लिए हम स्पेसिफिक अपने इस चैप्टर पे आते हैं। इस चैप्टर पे जो है ये हम कहाँ तक पहुंच चुके थे, यहाँ तक पहुंच चुके थे, पीरियड ऑफ लीज। सही। अच्छा जी, it is necessary for a valid lease that the leased asset is fully identified by the parties। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ऑनर जो है वो मल्टीपल हाउसेज उसके हैं, एक पूरी बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में जो है वो 50 अपार्टमेंट्स हैं, या शोरूम है जिसमें दसियों गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिसको रेंट पे वो देना चाह रहा है। तो अब दोनों पार्टीज बिल्कुल क्लियर हों कि कौन सा एसेट, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा फ्लैट, कौन सा अपार्टमेंट या कौन सी गाड़ी जो है वो किराए पर ली और दी जा रही है, बिल्कुल उसको मुतय्यन कर लिया जाए। अगेन इसमें डिस्प्यूट ना हो, गरर ना हो, कोई इबाहम ना हो कि बाद में डिस्प्यूट हो। इस्लाम नहीं चाहता कि आप
के मामलात आपस में खराब हों। वो चाहता है कि चीजें क्लियर हों और क्लियर टर्म में मामलात चलें, आपस में फिर कोई लड़ाई झगड़े ना हो। अगर खुदा न खास्ता कोई हो भी जाए तो फिर लेटिंग गो की बात की जाती है, माफा माफी की बात की जाती है, लेकिन पहले मरहले में चीजें इतनी क्लियर हों कि इसमें नौबत ही ना आए कि कोई बाद में झगड़ा खड़ा हुआ हो। अच्छा जी। यहाँ पैरेलल में सवालात भी आ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट मुदस्सिर कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट पे दे दें। अच्छा, प्रॉफिट पे जो है वो अगर दे दें तो मामला ये है कि इस्लामिक बैंकिंग में इजारा की बुनियाद पे आपको डिपॉजिट नहीं दिया जाता, बल्कि इस्लामिक बैंकिंग में मुजारबा की बुनियाद पे जो है वो आपको प्रॉफिट दिया जाता है। और मुजारबा हम पढ़ेंगे मिड के बाद, कुछ अरसे के बाद, और उससे रेलेवेंट वीडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह हम मिड के बाद मुजारबा का चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस्लामिक बैंक में इजारा की बुनियाद पे जो है वो कैश नहीं दिया जाता। डिपॉजिट्स में डिपॉजिट लिया जाता है इस्लामिक बैंक में हमेशा मुजारबा की बुनियाद पे, या दीगर जो है कर्ज की बुनियाद पे अगर होता है तो कुछ उस पे बेनिफिट नहीं मिलता। सही है, कुल्लु कर्ज़न जर्र मनफ़अतन फहुव रिबा वाला उसूल है। करंट अकाउंट में इस्लामिक बैंक अगर आपसे कैश लेता है, कर्ज की बुनियाद पे लेता है, तो उस पे कोई बेनिफिट, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट जो अदर अकाउंट होल्डर को ना मिल रहा हो वो आपको दे नहीं सकता। तो इस चीज को जहन में रखें। अच्छा जी, वापस आते हैं हम। लीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक पर्पस के लिए लीज अगर बात की जाए, तो मिसाल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी अगर कमर्शियल यूज के लिए ली है तो उसी काम में यूज की जाएगी, अगर कोई रेजिडेंशियल यूज के लिए ली है उसी काम में ली जाएगी। उसको मारूफ और मुनासिब तरीके से यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बस ले ली, जैसे रेंट ए कार से गाड़ी ले ली तो बस जिस तरह चाहे आप जो है वो उसका रगड़ा लगाएं, उसको खराब करें जैसा चाहे, ऐसा नहीं। आप एक मुनासिब तरीके से एक बाशऊर फर्द के तौर पर उसको यूज करेंगे। क्यों? आगे देखें, लेसी एज अ अमीन, आप अमीन हैं, अमानतदार हैं। आप समझें कि ये चीज जो है वो अपनी हो तब भी उससे भी ज्यादा बेहतर अंदाज में आपने केयरफुल वे में रखना है। हमारे बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं कि जब तक किराए के घरों में रह रहे हैं तो दीवारों का और दीगर चीजों का जो है वो बच्चे कबाड़ा कर रहे होते हैं, और जब अपने घर में जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई अब अपना घर है, अब साफ सुथरा रखना है। नहीं, अमीन है आप, किराएदार हैं तो आप अमीन हैं, अमानतदारी से आपने यूज करना है। उसमें कोई खयानत नहीं करनी, कोई उसमें गड़बड़ नहीं करनी। सही। द लेसी इज लायबल टू compensate the lessor for every damage to the leased asset caused by his misuse or negligence। अगर ऐसा होता है तो उस सूरत में जो नुकसान है उस नुकसान को पूरा करने का पाबंद होगा। द लीज्ड एसेट शेल रिमेन। अच्छा, अमीन का एक और मतलब भी निकलता है वाइस वर्सा, कि अगर लेसी की निग्लिजेंस, गफलत के बगैर वो एसेट तबाह हो जाता है, उस एसेट में कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, तो उस सूरत में लेसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खुदा न खास्ता घर लिया किराए पर, जलजला आ गया, तूफान आ गया, उससे घर गिर गया, जिसमें इसकी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, इसकी कोई गफलत नहीं है, तो इन दैट केस लेसी यानी किराएदार जो है वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसमें, क्योंकि ट्रस्टी है, अमीन है, अमीन अमानतदार है, अपनी तरफ से इसने केयर की, लेकिन अल्लाह की मर्जी। The leased asset shall remain in the risk of the lessor throughout the leased period, in the sense that any damage or loss caused by the factor beyond the control of the lessee shall be borne by the lessor। इसमें वही बात बताई गई है जो अभी मैंने आपको सिंपल उर्दू में बता दी। इस सिलसिले में हमारे बाद सीनियर दोस्तों ने जो है वो कन्वेंशनल बैंक भी लीजिंग करते हैं, तो उनका लीज एग्रीमेंट पढ़ा और पढ़ के हमें बताया कि कन्वेंशनल बैंक के लीज एग्रीमेंट में बाज़ औक़ात ये मेंशन होता है, बैंक इज द ऑनर ऑफ द एसेट बट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लॉसेस विल बी borne बाय द लेसी। तो ऐसी, क्योंकि कन्वेंशनल बैंक जो है वो चूंकि इस्लामिक उसूलों को नहीं फॉलो कर रहा होता, तो वो नाम की हद तक अपनी जो है ऑनरशिप रखना चाह रहा होता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने के लिए तैयार नहीं होता, तो उनके एग्रीमेंट्स भी जो है उसमें इस तरह के मसले आ सकते हैं। लीज ऑफ जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, लीज ऑफ जॉइंटली ऑन प्रॉपर्टी जो है वो अ प्रॉपर्टी जॉइंटली ऑन बाय टू और मोर पर्सन्स कैन बी लीज्ड आउट and the rental shall be distributed between all joint owners according to the proportion of their respective shares in the property।
A joint owner of a property can lease his proportionate share only to his co-sharer and not to another and any other person. अच्छा, बाज औकात ऐसा होता है कोई एक प्रॉपर्टी कोई एक एसेट दो या दो से ज्यादा लोगों का मुश्तरका हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अपने पार्टनर को, मिसाल के तौर पर आप और आपके भाई मिलकर किसी एसेट के पार्टनर बन गए, तो अपने पार्टनर को तो अपना हिस्सा, मिसाल के तौर पर 50% आपकी मिल्कियत है, 50% उसकी है, लेकिन आप रहते हैं XYZ किसी और इलाके में, वो प्रॉपर्टी है यहाँ कोरंगी क्रीक में। तो आपका भाई वहां रह रहा है, वो फुल प्रॉपर्टी सारी यूज करना चाह रहा है, तो आप अपना हिस्सा उसको किराए पर भी दे सकते हैं, आर्यतन भी दे सकते हैं। भाइयों में तो चलो ये कॉमन है, लेकिन फर्ज करें कि बैंक और क्लाइंट दोनों मिलके किसी एसेट के मालिक हो गए, जो कि डिमिनिशिंग मुशारका में हम पढ़ेंगे। तो बैंक अपना हिस्सा क्लाइंट को किराए पर देता है, तो वो डिमिनिशिंग मुशारका में हम पढ़ेंगे उसके स्टेप बाय स्टेप, उसके मल्टीपल स्टेप्स में। अच्छा जी, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंटल, रेंटल कैसे तय होगा? रेंटल तय होने के लिए क्या जरूरी है? द रेंटल मस्ट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द होल पीरियड ऑफ लीज। आपने 5 साल, 10 साल, 30 साल रेंट के लिए आपने किराए पे लिया है, तो या तो आप अमाउंट वाइज तय करेंगे भाई 20 साल, 5 साल का, बल्कि आजकल हमारे यहाँ तो 11 महीने का होता है नॉर्मली, तो 11 महीने का टोटल रेंट जो है वो होगा मिसाल के तौर पर 1,10,000 रुपये या XYZ अमाउंट, और उसका हर महीने करके दिया जाएगा या एक साथ दिया जाएगा, जो भी है वो तय करना जरूरी है। और डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेंट कुड बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट फेजेस ड्यूरिंग द लीज पीरियड। मुख्तलिफ फेजेस के लिए आप कह सकते हैं पहले साल इतना होगा, दूसरे साल इतना होगा, तीसरे साल इतना होगा, ये क्या पॉसिबल है। जैसा कि नॉर्मली हमारे जो रेंट एग्रीमेंट होते हैं उसमें होता है कि ये एग्रीमेंट हमारा 11 महीने का है, फिर 10% इजाफे के साथ इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो एक फॉर्मूला बना दिया, उसके अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। फर्दर इसको आप डिटेल से देख लीजिएगा, इसके उसूल और ज़ाब्तों को। इसी तरह लीज एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग, नहीं लीज नॉर्मल किराएदारी का मामला है एक्चुअली। ये हम में से हर एक जिंदगी में कभी ना कभी खुद या किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी दोस्त को या तो किराए पर लिया होता है या किराए पर देने की इत्तेफाक भी होता है। तो अब इसको एज अ मोड ऑफ फाइनेंस जब यूज किया जाता है इस्लामिक बैंक्स में, तो क्या तरीक़ेकार है, ये जो है ये हमारा यहाँ पर मेंशन है। नॉर्मली जो है इस्लामिक बैंक्स क्या करते हैं, वो एसेट परचेज करते हैं। जैसे पाकिस्तान में मीज़ान का कार इजारा मशहूर मारूफ है, तो मीज़ान बैंक वो एसेट अक्वायर करता है, नॉर्मली कंपनी से डायरेक्ट खरीदता है या कम अपने क्लाइंट को एज एसेट एजेंट बना के परचेज करता है, और उसके बाद उस एसेट को बैंक अपने मिल्कियत में लेकर आता है और फिर किराए पर देता है। 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, जो भी टाइम पीरियड है मेच्योरिटी डेट तक बैंक उसकी मिल्कियत रखता है, और फिर बैंक उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के अगेंस्ट उस एसेट को सेल आउट कर देता है। तो इसकी तफसील आपको इस रेलेवेंट पोर्शन में मिल जाएगी। अच्छा, कन्वेंशनल लीज और इजारा का डिफरेंस क्या है? तो कन्वेंशनल लीज का और इजारा का 1 बाय 1 पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन है। द एसेट टू बी लीज्ड इज नॉट ओन्ड बाय द बैंक। कन्वेंशनल लीज में अगरचे वो नाम लीजिंग यूज कर रहे हैं, किराएदारी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी ऑनरशिप नहीं लेने के लिए तैयार होते हैं, यानी ऑनरशिप से रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार नहीं होते। और यहाँ पर जो है वो इजारा में दी asset to be leased is owned by the bank। इसी तरह दूसरा पॉइंट है, द बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस टू द एसेट। यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप, तो ये जो है डिफरेंसेस आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग में ये 1 मिनट 18 सेकेंड रह गए हैं, तो अब यही बार हम इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी जो 2 रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आपने सुननी है, और ये तो आप मौजूद रहे इस रिकॉर्डिंग में। तो फर्दर हम इंशाल्लाह यहाँ से ऑनवर्ड आखिरी क्लास में मिनट से पहले की कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। किसी का कोई सवाल है रिकॉर्डिंग के अंदर लाने वाला तो कर लें, अदरवाइज हम रिकॉर्ड को क्लोज करते हैं इंशाअल्लाह।